Good morning, students. Now we were discussing Albert Einstein. आइंस्टाइन के बारे में डिस्कस कर रहे थे. A truly beautiful mind. सच में कितना अच्छा दिमाग था उसका, जिसके बारे में हम आज रीड कर रहे हैं. फर्स्ट लेक्चर हम कर चुके हैं. फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या रीड किया कि भाई उसकी लाइफ के बारे में, उसकी चाइल्डहुड के बारे में, और लाइफ किस तरह से उसने प्रॉब्लम्स फेस की, किस तरह से उसने स्टडी की, फिर आगे बढ़ा. डिस्पाइट लिविंग इन जर्मन ही वाज फेसिंग प्रॉब्लम और डिसिप्लिन. ही नीडेड डिसिप्लिन वेरी मच. वो डिसिप्लिन को बहुत ही ज्यादा हेट करता था. दैट्स व्हाई ही शिफ्टेड टू स्विट्जरलैंड इन जर्मन स्पीकिंग कॉलेज, जहां पर उसने अपनी एजुकेशन ली. इट वाज मोर लिबरल देन म्यूनिक. So children, this was all about the last. Let's start. But before starting the text, we just need to see the information of the lecture. This is July 28th, class 9th, subject English. And we are reading Beehive book. And this is lesson number 4. Right, everyone? And the lesson number 4 is A Truly Beautiful Mind. And this is lecture number 2. Right, everyone? So you just need to be a bit careful that you're connecting the things to one another or each other so that you can understand the text properly. You know, children, you see what happens when you are connecting to the things to one another or each other. You are not supposed to cram the things. When you go to take the exams, there what happens, some of those students have to cram the things, mug up the things, because they are not that much familiar to the text. Though I found so many students, even though I'm just letting you know, if you just prepare yourselves properly, you'll be able to just express any questions answers without any problem if you are through the text properly. Right, everyone? So what were we reading? We were reading about sorry, Albert Einstein. लास्ट पॉइंट हमारा क्या थे लास्ट लेक्चर में कि उसने जो है 1905 के अंदर एक डेवलप किया था. दैट वाज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, राइट? अकॉर्डिंग टू व्हिच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट. यानी कि टाइम और डिस्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है. डिफरेंसेस है वहां पर उनके. कहाँ से वो हिट कर रहा है, कैसे वो बढ़ रहा है, इट्स ऑल अबाउट योर साइंस. दो if you want to increase your knowledge related to relativity, theory of relativity of science teacher also. So let's start further. जिसका जो formula था, it was E is equal to mc square. Right, everyone? Let's go to 10 point. While Einstein was solving the most difficult problems in physics, इसके साथ साथ हम रीड कर रहे हैं कि आइंस्टाइन जो था वो फिजिक्स की प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहा था, जो फिजिक्स की मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हुआ करती थी उस समय. व्हेन ही वाज देयर, हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेवलिंग. अनरेवलिंग मींस स्टार्टिंग टू फेल. उसकी जो अपनी प्राइवेट लाइफ थी, पर्सनल लाइफ थी, वो फेल हो रही थी. He was not getting success in his personal life, though he was getting success in his professional life, like solving the most difficult problems of physics, right? So we got the contradiction between the life of professional and personal, private life, जिसको हम बोलते हैं. Albert had wanted to marry Milivia right after finishing his studies. एल्बर्ट जो है अपनी स्टडी को फिनिश करने के तुरंत बाद मिलेविया से शादी करना चाहता था. जैसे ही वो अपनी एजुकेशन फिनिश करेगा, वो जो है स्टडी करेगा वहां पर. बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट. लेकिन जो उसकी मदर थी वो बिल्कुल खिलाफ थी उनकी कि भाई
शी थॉट मिलेविया, उसने मिलेविया के बारे में क्या सोचा, who was 3 years older than her son, जो कि उसके बेटे से 3 साल बड़ी थी. Well, children, naturally what happens when the boy or a girl get married, boy should be at least 2-3 years older than a girl. लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा था. मिलेविया was 3 years older than आइंस्टाइन. 3 साल बड़ी थी वो आइंस्टाइन से. was too old for him, यानी कि वो उससे बहुत ज्यादा बड़ी थी. उसकी मदर ऐसा सोचती थी कि ये 3 साल बड़ी है तो बहुत ज्यादा बड़ी होगी मेरे बेटे से. she used to think like this. She was also bothered by Milligan's intelligence. और इसके अलावा एक चीज और थी जो उसको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही थी. That was इंटेलिजेंसी लेवल. लाइक जो मिलेविया थी उसका इंटेलिजेंसी लेवल आइंस्टाइन से कुछ ज्यादा था. भाई वो ज्यादा इंटेलिजेंट थी. ये भी जो है आइंस्टाइन की मदर को काफी परेशान करती थी ये बात कि भाई जो मिलेविया थी ये काफी इंटेलिजेंट है. काफी परेशान करती थी ये बात. शी इज अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड. आइंस्टाइन की मदर ने जो है आइंस्टाइन से कहा कि वो भी एक किताब है तुम्हारी तरह, जैसे तुम एक किताबी कीड़े हो, किताब हो ना, वो भी वैसे ही है. आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ. और आइंस्टाइन ने इस पर जो वेडिंग होनी थी उसको क्या कर दिया, टाल दिया कुछ समय के लिए. इस वेडिंग को टाल दिया. ऑल्टरकेशन चल रही थी फैमिली में, अनबन कहा सुनी. मदर वाज नॉट रेडी और did not agree to get her son to marry that intelligent and older lady than her son. कि भाई वो उसके बेटे से 3 साल बड़ी है और वो इंटेलिजेंसी लेवल भी उसका बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू आइंस्टाइन. सो keeping these all things in mind, Einstein put off the wedding. wedding को put off कर दिया, टाल दिया कुछ समय के लिए, इवेट कर दिया. The pair, the pair finally married in January. The pair married in January means उन्होंने दोनों ने जो है जनवरी 1903 में शादी की. 1903 में उन्होंने शादी की and had 2 sons. 2 बेटे थे उनके. But a few years later, लेकिन कुछ सालों के बाद, कुछ ही सालों के बाद क्या हुआ, the marriage faltered. Faltered means became weak. उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, जो समझ थी वो कमजोर पड़ गई. became weak. Mileria meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy wife. Intellectual means जो उसका आध्यात्मिक वो एक sad housewife. After constant fight, after fighting means लगातार लड़ाई के बाद, the couple finally divorced in 1919. काफी बातें हुई, अनबन हुई, कहा सुनी हुई, constant fighting और साल के बाद फाइनल 1990 दोनों ने जो है 1919 डाइवोर्स कर दिया, तलाक ले गए एक दूसरे से. आइंस्टाइन एंड हिज कजन, आइंस्टाइन ने जो है कर ली अपनी ही कजन से. देखो उसकी जिंदगी का एक दूसरा चैप्टर जो था उसी समय शुरू हुआ. With his rise to world fame. वर्ल्ड फेम मीन्स संसार में जो प्रसिद्धि हासिल करनी थी, अब उसका वो चैप्टर शुरू हो चुका था साथ के साथ. In 1915 he had published his general theory of relativity. रिलेटिविटी की जनरल थ्योरी उसने 1915 में पब्लिश की, which provided a new interpretation of relativity.
और उसकी थ्योरी ने जो है ग्रेविटी की इंटरप्रिटेशन मींस उसकी एक्सप्लेनेशन, उस सेइंग को लेकर के जो उसके बारे में बातें थी उसको चेंज करके रख दिया, न्यू इंटरप्रिटेशन उसकी प्रोवाइड की, फिर नया। अभी तक जो डेफिनेशन ग्रेविटी की होती थी दैट वाज अ बिट डिफरेंट, अब चेंज हो चुकी है बिल्कुल। एन एक्लिप्स ऑफ द सन, सूर्य ग्रहण जिसको हम बोलते हैं, एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 में जो हुआ, ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट। और ये प्रूफ था जब 1919 में सोलर इक्लिप्स हुआ, सूर्य ग्रहण, और इसने ये प्रूव कर दिया कि आइंस्टाइन ने जो थ्योरी दी थी दैट वाज एब्सोल्युटली एक्यूरेट। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. आइंस्टाइन ने बिल्कुल करेक्ट कैलकुलेशंस की थी एडवांस में, इन एडवांस। क्या कैलकुलेशन की थी कि भाई द एक्सटेंट ऑफ टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स, जो सितारों से लाइट जो चलती है, वुड बी डिफ्लेक्टेड। डिफ्लेक्टेड मींस चेंज्ड डायरेक्शन बिकॉज इट हिट समथिंग, क्योंकि ये किसी चीज को हिट करती है और जो हिट करने के बाद आगे बढ़ती हैं या अपनी डायरेक्शन चेंज करती हैं, तो इनकी डायरेक्शन वहां से चेंज हो जाती है और उनकी स्पीड और टाइम में डिफरेंस आ जाता है। would be deflected through the sun's gravitational field. The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution. और न्यूज़पेपर्स ने इतनी न्यूज वहां पर बना दी कि दिस वाज द साइंटिफिक रेवोल्यूशन, कि किसी ने इतनी एक्यूरेट कैलकुलेशन की है लाइट और टाइम की। Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिलता है फॉर फिजिक्स इन 1921 में। He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press। उसको जो है इतना सम्मान मिलता है हर जगह, पूरे संसार से, all over the world, बहुत ही ज्यादा सम्मान उसको मिला, इज्जत उसको मिली, और मीडिया ने उसको बहुत ही मीन्स द इम्पोर्टेंस गिवन बाय द मीडिया। मीडिया ने इतनी इम्पोर्टेंस दी उसको कि चारों तरफ उसी की न्यूज थी। एवरीवन वाज हियरिंग अबाउट आइंस्टाइन, लिसनिंग अबाउट आइंस्टाइन, रीडिंग अबाउट आइंस्टाइन। जहां पर भी सुनना पढ़ना, चारों तरफ आइंस्टाइन की बातें चल रही। When the Nazis came to power in Germany in 1933, जब नाजी की पावर आई जर्मनी 1933 में, this is a political say, 1933, Einstein immigrated to the United States। आइंस्टाइन जो है यूनाइटेड स्टेट्स आ जाता है अमेरिका के अंदर। 5 years later, 5 साल के बाद, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar। 5 साल के बाद साइंटिफिक पॉइंट बेसिकली, तो बर्लिन के अंदर ऐसा ढूंढा गया, मिल गया उनको, डिस्कवर हुआ न्यूक्लियर फिजन, had American physicists in an uproar। जो अमेरिका के फिजिसिस्ट्स थे वो बड़े अपसेट हुए इस बात को लेकर के। in an uproar means very upset होना। many of them had fled from fascism। उनमें से कई तो जो है had fled from fascism छोड़ करके इधर उधर निकल जाते हैं। it's a political system of the things imposed on the people by the political parties, right everyone, just as Einstein had। एंड नाउ जिस तरह से कि आइंस्टाइन नाजिज्म के आते ही जर्मनी छोड़ के यूएस आ गया, वैसे ही काफी लोग जो है वहां से छोड़ करके चले गए इधर उधर। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम। और उसको बड़ा डर रहा, अफ्रेड मींस वो डरा रहा कि वे कहीं नाजी जो है एटॉमिक बम ना बना ले और एटॉमिक बम बना करके उसको जो है यूज न कर। वो डर गया था, सहम गया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन गॉट स्केयर्ड, गया था दिस होल गोइंग टू फेस, ये क्या होने वाला है, राइट। जिस बात को लेकर के वो डर गया था, सहम गया था, दैट वाज टोटली।
at the urge of a colleague, एक उसके कलीग ने, जो उसके साथ काम करता था वहां पर, उसका साथी था, उसकी रिक्वेस्ट पर उसने आइंस्टाइन को रिक्वेस्ट की। उसकी रिक्वेस्ट पर आइंस्टाइन ने क्या किया? आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट के नाम, सॉरी, ऑन 2 अगस्त 1939, यानी कि 2 अगस्त 1939 को, इन विच ही वांट, और उसमें लेटर के अंदर उसने वार्निंग दी, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, कोई भी बम एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, अगर उस बॉम्ब को पोर्ट के अंदर एक्सप्लोड कर दिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड पोर्ट क्या होता है, बंदरगाह जिसको हम कहते हैं। और ये एक छोटा एरिया नहीं होता, हमारा करनाल पानीपत जितना सिटी है ना, इससे भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है। यानी कि करनाल से पानीपत का डिफरेंस है 40-45 किलोमीटर, इससे भी बड़ा होता है पोर्ट। कई बार पोर्ट का जो एरिया होता है 30-30 किलोमीटर, 40-40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक बड़ा पोर्ट होते हैं, जहां पर समुद्री जहाज रुकते हैं। तो आइंस्टाइन कहता है कि इस तरह की किसी सिंगल बम को और पोर्ट के ऊपर एक्सप्लोड कर दिया जाए, might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory। कि भाई अगर किसी भी एक पोर्ट के ऊपर इसको छोड़ दिया जाए तो ये क्या करेगा? ये पूरे पोर्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा और उसकी सराउंडिंग एरियाज को भी, जो आसपास के एरियाज है। सो वी कैन इमेजिन कि भाई एक एटॉमिक बम जो है, परमाणु बम, कितने एरिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो डरा हुआ था, इसलिए उसने वार्निंग दी थी, प्रेसिडेंट के नाम लेटर में लिख दिया। His words did not fail to have an effect। जो शब्द उसने अपने लेटर के अंदर लिखे थे, जो वर्ड्स उसने अपने लेटर के अंदर लिखे थे टू द प्रेसिडेंट, वो फेल नहीं हुए। उनका एक बहुत ही इफेक्ट हुआ, अच्छा इफेक्ट हुआ। गॉट द रिवॉर्ड। The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own। अमेरिकन्स ने सीक्रेटली एटॉमिक प्रोजेक्ट लगाया और एटॉमिक बॉम्ब को डेवलप कर लिया, बना लिया अपने आप, सीक्रेटली, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सीरीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और उन्होंने क्या किया? उस एटॉमिक बॉम्ब को, जापानीज सीरीज जो थी हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, अगस्त 1945 में छोड़ दिया, गिरा दिया। Everyone knows about this. This was the biggest news that time, and by now also 1945 के बाद अभी तक एटॉमिक बॉम्ब का यूज नहीं हुआ है। It was used in 1945 children। So हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर आप लोग जो है इंटरनेट से न्यूज निकाल कर रीड आउट कर सकते हो। What had happened, कि क्या हुआ होगा वहां पर? What would have happened when the atomic bomb was dropped on Hiroshima and Nagasaki। जब हिरोशिमा और नागासाकी बॉम्ब छोड़ गया तो वहां पर क्या हुआ होगा? Sort of information you can gather from the net by the Google basically, right everyone? You should be updated with the knowledge। So अमेरिका ने सीक्रेटली ये डेवलप किए और इसको जो है हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर छोड़ दिया, right everyone? Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction। और आइंस्टाइन अंदर से हिल गया, एकदम से डर गया, सहम गया कि भाई ये क्या कर दिया। हालांकि he was trying to save the countries that these sorts of things should not be used despite living in the universe, because lakhs of people died। लाखों लोग मरे थे उस हिरोशिमा और नागासाकी में जब एटॉमिक बम को गिराया गया। तो आइंस्टाइन जो है बड़ा हिल जाता है, अंदर से डर जाता है, सहम जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है उसके साथ। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। और इस समय उसने यूनाइटेड नेशंस को, मिसिव मीन्स एक लेटर लिखा, स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल, काफी लंबा लेटर था और ऑफिशियल लेटर लिखा था यूनाइटेड नेशंस को, जैसे पीछे लिखा था। In it, he proposed the formation of a world government।
और इसमें उसने प्रपोज किया था गवर्नमेंट बनाने के लिए कि जैसे एक कंट्री की गवर्नमेंट होती है वैसे ही एक वर्ल्ड की भी गवर्नमेंट हो, देयर शुड बी अ गवर्नमेंट ऑफ वर्ल्ड, एक वर्ल्ड की गवर्नमेंट होना बहुत जरूरी है। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, जैसा कि लेटर उसने रूजवेल्ट को लिखा था उस समय, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, इसका जो है कोई असर नहीं हुआ। व्हाट वी अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, द लास्ट लेटर व्हिच वाज रिटन टू द रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को जो लेटर उसने लिखा उसका काफी असर हुआ, इट रियली वर्कड देयर। इसकी वजह से क्या क्या चेंजेस हुए, अमेरिका ने सीक्रेटली डेवलप किया एटॉमिक बॉम्ब, उसको यूज किया। लेकिन ये जो सेकंड लेटर उसने यूनाइटेड नेशंस को लिखा, इसका कोई असर नहीं हुआ, ये कोई चेंजेस नहीं ला सका, इट कुडंट ब्रिंग एनी सॉर्ट ऑफ चेंज, राइट। बट over the next decade Einstein got ever more involved in politics। लेकिन अगले कुछ सालों तक आइंस्टाइन जो था उसने अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया पॉलिटिक्स के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया, एजिटेशन फॉर एन एंड आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग, मींस अब वो जो सारी चीजें थी, he was agitated means he didn't like the things basically। agitation means होता है उनसे थोड़ा खिजे रहना, उनको लाइक न करना, got ever more involved in politics, और पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गया बहुत ज्यादा। फॉर एन एंड टू द आर्म्स, यानी कि वो चाहता था कि युद्ध ना हो, ये युद्ध जैसी स्थिति ना बने, ये सारी चीजें खत्म होती चली जाए और पूरे संसार के अंदर शांति हो, प्रेम हो, सभी मिलजुल करके रहे। His popularity to campaign for peace and democracy, और उसने दो चीजों को लेकर के उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई पूरे संसार के अंदर, क्योंकि उसने कैंपेन किए शांति को लेकर के, पीस को लेकर के और डेमोक्रेसी को लेकर के। क्योंकि उस समय वर्ल्ड की काफी कंट्री, बहुत ही ज्यादा कंट्री जो थी अंडर दी ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन के अंडर थी। जैसे हमारी कंट्री भी 1945 तक जो है लिबरल नहीं थी, गॉट लिबरल इन 1947। सो काफी देश जो हैं गुलाम थे उस समय, स्लेव थे बेसिकली। तो इसने जो कैंपेन किए, पीस के कैंपेन किए, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मींस लोकतंत्र, लोकतंत्र के इसने कैंपेन किए, जिससे कि इसको काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। he got much of the popularity from the universe, from the people of the world, पूरे संसार के लोगों की तरफ से उसको जो है पॉपुलैरिटी मिलनी शुरू हो गई। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. Now you see children, दो बातें हैं। जब उसकी मृत्यु हुई 1950 के अंदर, 55 के अंदर, at the age of 76, वो 76 के थे, उसका जो थी उसको सेलिब्रेट, एक विजनरी मींस जो स्वप्न देखता है, चीज को सही की कोशिश करता है, एक वर्ल्ड सिटीजन, वी आर द इंडियंस, हम इंडियन हैं, हम इंडिया के सिटीजन हैं, लेकिन वर्ल्ड के अंदर वो इकलौता ऐसा इंसान था जिसको वर्ल्ड सिटीजन बोला गया था। पूरी दुनिया की उसके पास जो है वो, उसने जो प्रपोज किया था कि हमें वर्ल्ड गवर्नमेंट बनानी है, हमें पीस को और डेमोक्रेसी जो करना है, बिकॉज ऑफ दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स उसको वर्ल्ड सिटीजन बोला गया है। उस as much as a scientific genius, scientific genius means कि वो वैज्ञानिक था, वो जीनियस था, उससे भी कहीं ज्यादा उसको वर्ल्ड सिटीजन के नाम से लोग जानने लगे। People started knowing him more than, like he was a world citizen, more than scientific genius. So what we find in this text, we understood, we read about a truly beautiful mind. See, the text we read, based on this, the name of the chapter suits properly, a truly beautiful mind. कि उस इंसान का दिमाग कितना अच्छा था, कितनी अच्छी बातें वो सोचता था। वो चाहता था कि भी पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे संसार के अंदर शांति हो, सौहार्द हो और वर्ल्ड के अंदर डेमोक्रेसी हो।
He wanted everyone to be liberal. वो चाहता था कि हर कोई स्वतंत्र हो, right? And apart from this, he was scientific genius also. Relativity की theory उसने जो थी, that was the revolution in the science. Science के अंदर revolution था. So what do we understand, students? We need to be a kind-hearted, peaceful-minded person, despite having the knowledge of any particular thing, or we have any special skills in terms of any skill, right, everyone? This was all about we were getting. Now, what we understand basically, कि भाई इस तरह के chapters को read out करने के बाद we get such a confidence that we can deal out the things. Though you just need to make up your mind to understand the text properly instead of cramming or mugging up the answers. Once or twice you read the text, you become very strong enough to answer the questions without even cramming the answers. So, dear students, that's it for today's lecture. Now, I'll just get you to just come forward if you found any difficult word from the text you want to ask, right? I would like to ask Akash sir.